Okay, good afternoon, everyone. So, we were discussing about the award and ignore method in our previous class, and I hope you all have clearly understood what is the difference between carrot and stick method and award and ignore method. Is there any query, any confusion from the previous class or from the topic of difference between carrot and stick and award and ignore? Any query? नो मैम एक्चुअली मैम मैंने कल का भी सेशन नहीं देख पाई Okay, सब रिकॉर्डिंग बाकी है मेरा तो मैं आज okay, देखूंगी no problem. Yes, Pritu? Yes, ma'am. No query as of now. It's fine Okay, only. Yeah. fine. So we have to switch our behavior, our conditioning, our reactions or responses from carrot and stick method to this progressive parenting approach of award and ignore method. So we were discussing about what is award in this approach, award and ignore. And generally, we parents misunderstood the word award by some materialistic gift, some toy, these kind of award, right? But yesterday we discussed so many different types and categories of award, and yeah, so we discuss there are four categories, four types of award we can give our children to make them feel special whenever they do something good or some commendable job. The best award we can give our children is appreciation or praise, but generally we misunderstood the word of appreciation only by good job, well done, wonderful. So we have discussed so many different types of phrases or statements we can use while appreciating our children. Second thing is recognizing their efforts. Our focus must be on the efforts done by our child, not by the final result only, right? If we continue to praise the result, then they will not be able to understand what is the value of their efforts, right? हम हमेशा यही कहेंगे कि तुमने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, तुमने ये काम टाइम पे कर लिया, बट वो मार्क्स स्कोर करने के लिए या वो काम टाइम पे करने के लिए या आपकी हेल्प करने के लिए बच्चे की जो इंटेंशन थी, बच्चे के जो एफर्ट्स थे, that should be appreciated so that the child can get motivated, he can get positive reinforcement, right? So we should appreciate and recognize the efforts of the child. Then third one is gratitude. Always show your gratitude towards them whenever they do something good for you while intending to help you or something. So you always should show your gratitude by simply saying thank you, or by giving them a hug, or by giving them some simple love notes, I love you beta, thank you beta, or some beautiful handmade cards, etc. And the most important is celebration. Here celebration does not mean always throwing some party or some big grand celebration. A small wins can also be celebrated in small ways. So we can make their day beautiful by making them feel special and by celebrating what they are doing good, right? So we can give them a small token of love, a small chocolate or some kind words, or a favorite dish of theirs in dinner, or these kind of celebrations can also give them a token of happiness. Then we discussed about art of praising. Just we were discussing कि while praising or appreciating the child, we generally use the word good job, very good, well done. But we should be mindful when we are praising our child. We should be specific for what thing we are praising them. Only saying good job is not enough. If you are appreciating them for their drawing or painting or their homework or them organizing their things, तो we should be very particular. अगर आप ड्राइंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो यू कैन बी पर्टिकुलर अबाउट देयर कलर कॉम्बिनेशन ऑफ
selection of color combination or their neat drawing or sketching. While appreciating their homework, you can be particular कि होमवर्क बहुत नीट एंड क्लीन है, और योर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, और यू हैव डन द होमवर्क बिफोर टाइम, और यू हैव डन द होमवर्क विदाउट माय इंस्ट्रक्शंस. तो यू शुड बी स्पेसिफिक, राइट? नाउ प्रेज द एफर्ट्स, नॉट ओनली द रिजल्ट. रिजल्ट हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है. अच्छे मार्क्स आए उसको सब अप्रिशिएट करेंगे, टीचर्स भी, नेबर्स भी, फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी. बट यू आर द पेरेंट्स. It is your moral responsibility to encourage your child by appreciating their efforts. उनकी मेहनत को appreciate कीजिए, उनके intention को appreciate कीजिए. Then praise and correction shall be at separate time. Generally what we do, हम बच्चे को जब भी appreciate करते हैं साथ साथ में हम but लगा देते हैं. but का जो clause है वो बच्चे के जो motivation उसको मिलना चाहिए, जो excitement उसको होना चाहिए कि I have done this thing and mama is very happy with me, वो थोड़ा डाउन हो जाता है. अगर हमने ये लगा दिया कि तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है बट तुम और अच्छा कर सकते थे, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग की है बट कलर ये वाला यूज कर सकते थे, तो हमें वो बट नहीं लगाना है, राइट? बट मीन्स वी आर करेक्टिंग देम. तो यू शुड करेक्ट देम बिकॉज यू आर अ पेरेंट एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि हम बच्चे की गलतियों को सुधारें, उनको करेक्ट करें. बट इट शुड बी एट डिफरेंट टाइम. जब आप तारीफ कर रहे हैं तब सिर्फ तारीफ कीजिए, प्यार दे रहे हैं तब सिर्फ प्यार दीजिए. जब बाद में यू थिंक नाउ इट्स टाइम, तो उन्हें उनकी गलती बताते हुए बहुत प्यार के साथ करेक्शन भी बता सकते हैं. देन प्रेज शुड बी जेन्युइन एंड सिंसियर. जो एक्चुअली ही इज डूइंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड. सिर्फ बच्चे को खुश करने के लिए, प्यार जताने के लिए हमें तारीफ करनी है, ऐसा नहीं है. And praise should be in public and correction should be in private. यहाँ पे I would say should नहीं, must. हमेशा जब आप बच्चे की तारीफ करें, अकेले में तो कर ही सकते हैं, बट पब्लिकली करें, लोगों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, हस्बैंड के सामने, नेबर्स के सामने, ग्रैंड पेरेंट्स, दादू दादी, नानू नानी के सामने. तो बच्चे बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं. दे फील पॉजिटिवली हैप्पी कि माय मम्मा इज appreciating me aloud, सबके सामने. एंड जिनके सामने आप तारीफ कर रहे हैं उनका भी नजरिया जो है आपके बच्चे के लिए पॉजिटिव होगा, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर चाइल्ड, एंड इट विल गिव योर चाइल्ड डबल फील ऑफ एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन कि मम्मा भी तारीफ कर रही है, नानू भी कर रहे हैं, या दादी भी कर रही है, या नेबर्स भी कर रहे हैं. तो हमेशा पब्लिकली उनकी तारीफ करें, बट उनकी जो गलती है वो पब्लिकली ना बताएं, वो अकेले में बताएं. उनकी गलती सुधारें, या कभी डांटना पड़ता है या कोई चीज समझानी पड़ती है, वो अकेले में करें, राइट? क्योंकि प्रेज इन पब्लिक बिकम अ सेलिब्रेशन बट करेक्शन इन पब्लिक बिकम अ क्रिटिसिज्म. ये बात हमेशा ध्यान में रखें. ये हम पे भी लागू होती है, हमारे दूसरे रिलेशंस पे भी लागू होती है. कोई सबके सामने अगर हमें हमारी गलती बता देता है या कोई कमी हमसे रह गई तो उसे करेक्ट कर देता है, तो वी डोंट फील गुड अबाउट इट. हमें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है कि 4 लोगों के सामने मुझे ऐसा बोल दिया, राइट? तो हमारे बच्चे भी वैसा ही फील करते हैं. तो तारीफ हमेशा सबके सामने करें, बट गलती अगर बतानी है तो अकेले में. नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक अवॉर्ड एंड इग्नोर, एंड आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, अगर अवॉर्ड वाला पार्ट हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपरली अप्रिशिएट कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, तो इग्नोर वाला पार्ट वर्क करेगा. अब मैं इग्नोर वाला पार्ट समझाने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ, बट कीप इन माइंड अगर हम इग्नोर 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 करेंगे तो वो बच्चे में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा. अगर हमें इग्नोर वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है बच्चे के साथ, तो अवार्ड वाला जरूर करें, पहले करें. पहले अवार्ड वाला शुरू करें, प्रेज करना शुरू करें, पब्लिकली उनको अप्रिशिएट करें, स्पेसिफिक होकर करें, उनकी छोटी छोटी चीजों पर उन्हें थैंक यू बोलें, छोटी छोटी उनकी कोई भी विन है, उनका कोई अचीवमेंट है, उनको छोटे छोटे सेलिब्रेशंस दें. उससे बच्चे के दिल में हम पॉजिटिविटी भरेंगे, मोटिवेशन भरेंगे, हमारे लिए बच्चे के मन में ट्रस्ट आएगा, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम उन्हें लगेगा. उसके बाद इग्नोर वाला पार्ट शुरू करें. नाउ व्हाट इज
द वर्ड मीन्स हियर इग्नोर. इग्नोर वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट डज दैट मीन? इग्नोर का क्या मतलब है? मैम जो गलतियां हैं उनको इग्नोर करना है, लाइक राइट, मिस्टेक्स को. एग्जैक्टली. जनरली जब हम इग्नोर की बात करते हैं तो बिना कंसेप्ट समझे हम उसको क्या समझेंगे? इग्नोर मीन्स इग्नोरिंग द चाइल्ड, कि बच्चे ने गलती की तो उसको इग्नोर करो. बट ये नहीं करना है. हियर इग्नोरेंस मीन्स नॉट अप्रिशिएटिंग. इग्नोर करना है मतलब गलती को इग्नोर करना है. करेक्ट. बट अगर हम सिर्फ गलती को इग्नोर करते रहेंगे तो इसका मतलब हम उसकी गलती को करेक्ट नहीं करेंगे. तो धीरे धीरे ओवर द टाइम बच्चा बिल्कुल ऐसे केयर फ्री हो जाएगा कि गलती करने पे मम्मा डांटती नहीं है, टोकती नहीं है, समझाती नहीं है, तो मीन्स ओके कुछ भी कर सकते हैं. बट हमें अपना काम तो करना ही है. कल भी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, जैसे सोनल ने कुछ पूछा था, तो क्योंकि हमारा पूरा जो ये मॉड्यूल है हम यही बात कर रहे हैं कि बच्चों को प्यार शो करें, पॉजिटिव रहें, बच्चों को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें. तो द पॉइंट हियर जो सोनल ने क्वेश्चन उठाया वो हर पेरेंट के दिमाग में आ सकता है कि अगर हम सिर्फ बच्चे को प्यार ही प्यार शो करेंगे तो बाहर की दुनिया में उसे प्यार नहीं मिला, चिड़चिड़ाहट मिली या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला, तो हाउ ही विल बी एबल टू फेस इट. राइट. तो हमारा पर्पस ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ प्यार ही प्यार करना है, हमें बच्चे को दुनिया के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए तैयार भी करना है, उसको इमोशनली स्ट्रांग भी बनाना है. तो यहाँ पर हम सिर्फ बच्चे की गलती को करेक्ट करने का या सुधारने का तरीका चेंज कर रहे हैं. हम डांटना, थप्पड़ मारना उसकी बजाय थोड़ा डिफरेंट तरीके को अपनाने की बात कर रहे हैं. हम पनिशमेंट देंगे बच्चे को, बट वो पनिशमेंट फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगी. राइट. बट ऐसी पनिशमेंट भी नहीं देनी है जो उसके इमोशंस को हर्ट करे, कि वी स्टार्ट टू इग्नोर देम. जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती. अब आपने सुबह से शाम तक बच्चे से बात नहीं की तो ही विल फील इग्नोरेंट, ही विल फील रिजेक्टेड. तो वो भी बच्चे के धीरे धीरे इमोशनल स्ट्रेंथ को कम कर देता है. तो वी शुड नॉट इग्नोर द चाइल्ड, वी शुड इग्नोर द मिस्टेक डन बाय द चाइल्ड. नाउ इग्नोरिंग द मिस्टेक कंप्लीटली वो भी गलत है. मिस्टेक को इग्नोर पूरी तरह भी नहीं करना है, उसको करेक्ट तो करना ही है. बट what we tend to do, we should not correct the mistake of the child then and there. जो दो चीजें हैं, एक है अवॉर्ड, एक है इग्नोर, एक है अप्रिशिएशन, एक है गलती सुधारना. तो जो हमें अवार्ड देना है, अप्रिशिएट करना है, वो देन एंड देयर करना है. जब भी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया वी शुड अप्रिशिएट हिम देन एंड देयर. जब भी उसने कुछ अचीवमेंट किया वी शुड प्रेज हिम, वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम देन एंड देयर. क्योंकि क्या होता है, मान लो आज की क्लास में मुझे लगा कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और प्रीतु ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, या मैंने कोई असाइनमेंट दी थी, सोनल ने वो असाइनमेंट सबसे पहले करके कंप्लीट कर दी, या डेली की क्लास में सोनी इज वेरी वेरी रेगुलर एंड पंचुअल. अब मैं सोचूंगी कि जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लास्ट डे मैं सबको उनके अच्छी अच्छी चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगी. तो एक ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो गया. जो इंस्टेंट मेरे तारीफ करने से, अगर मैं कहती हूँ कि वेल डन प्रीतु, मैंने जो क्वेरी पूछी थी उसका बिल्कुल फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड जवाब आपने दिया है, मैं यही सुनना चाहती थी. सोनल वेल डन, आपने असाइनमेंट बिल्कुल ऑन टाइम करके मुझे दे दिया और बहुत ही एनालिटिक तरीके से दिया है. सोनी आई अप्रिशिएट, यू आर वेरी रेगुलर इन द क्लास एंड वेरी पंचुअल. तो ये आपको मोटिवेट करेगा, इट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ये आपको मोटिवेट करेगा कि जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे अप्रिशिएशन मिली है ग्रुप के सामने, तो मुझे वो कंटिन्यू करना है. राइट. बट अगर मैं उसको होल्ड करके रखूंगी लास्ट डे के लिए, हो सकता है लास्ट डे हमारा जब सेशन हो तब आप में से कोई एब्सेंट हो, तो मैं उसे वो अप्रिशिएशन देना चाहती थी सबके सामने, वो नहीं दे पाऊंगी. हो सकता है जब हमारा लास्ट सेशन हो तब आप लोगों की कुछ क्वेरीज एक्स्ट्रा आ जाए, या हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट एंगल से एग्जांपल्स के साथ में टर्न ले ले और मैं ही भूल जाऊं कि मुझे किसको किस चीज के लिए अप्रिशिएट करना था. या हो सकता है मैंने याद रखा, सबको ऑन टाइम अप्रिशिएट कर दिया लास्ट सेशन में और आप लोग भी सब प्रेजेंट थे, बट जो मैंने अभी किया
आज की क्लास में आज के रिस्पॉन्स को अप्रिशिएट। तो आप मोटिवेट हुए, अब बचे हुए सारे सेशंस में आप अपने उस बिहेवियर को और इम्प्रूव करेंगे। सोनी विल थिंक कि हाँ मैं रोज रेगुलर रहती हूँ तो मैम अप्रिशिएट कर रही है, तो शी विल ट्राई कि मैं रेगुलर रहूं, टाइम पे रहूं और इंटरेक्ट करूं। प्रीतु ने क्वेरीज को आंसर किया, शी विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ मैम कुछ क्वेरी करती है तो मुझे इमीडिएटली इंटरेक्ट करना है, रेस्पॉन्स देना है। सोनल विल गेट मोटिवेशन कि हाँ जो भी असाइनमेंट्स हमें मिल रहे हैं वो हमें टाइम टू टाइम करके देने हैं। तो अगर मैं अभी आपको ऑन द स्पॉट देन एंड देयर अप्रिशिएट करती हूँ, पॉजिटिव मोटिवेशन देती हूँ, तो वो है आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि जो चीज के लिए आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है वो आप कंटिन्यू करेंगे, और धीरे 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 वो आपका पॉजिटिव बिहेवियर बन जाता है, राइट। इन द सेम वे अब अवार्ड वाला पार्ट हम कर रहे हैं, पैरेलली हमें इग्नोर वाला पार्ट शुरू करना है। नाउ इग्नोरेंस मीन्स नॉट इग्नोरिंग द चाइल्ड, not ignoring the problem, not ignoring the mistakes, but ignorance here means not appreciating, means pause your reaction, hold your reaction। अभी नॉट अप्रिशिएटिंग का मतलब आप कहेंगे बच्चे ने तो गलती की है तो हम वैसे भी अप्रिशिएट क्यों करेंगे उसको, राइट। बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो हमने अप्रिशिएट कर दिया तुरंत, पर अब बच्चे ने कोई गलती कर दी, वो ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेल रहा है बच्चा और वहां पे कोई कांच का जग पड़ा हुआ है या कोई कांच का फ्लावर पॉट वास पड़ा हुआ है सुंदर सा, वो टूट गया। अब नॉट अप्रिशिएटिंग तो ऑब्वियसली उसने तोड़ा है तो हम अप्रिशिएट क्यों करेंगे, वेरी गुड तो बोलेंगे नहीं। हियर नॉट अप्रिशिएटिंग मीन्स नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, जनरली नॉट रिएक्टिंग। जनरली व्हाट वी डू, जनरली व्हाट वी डू, जैसे ही बच्चे से कुछ गलती हुई, जैसे ही उससे वो वास टूटा, इमीडिएटली वी स्टार्ट रिएक्टिंग। ये क्या कर दिया, वास तोड़ दिया, इतना एक्सपेंसिव था, पता है ये उन्होंने गिफ्ट दिया था और ड्राइंग रूम में मैंने अच्छे से सजा के रखा हुआ था, ये कोई जगह है क्रिकेट खेलने की, एंड दिस एंड दैट, राइट। वी हैव टू होल्ड ऑन। हमें अप्रिशिएट नहीं करना है, मतलब हमें रिएक्ट ही नहीं करना है। गलती हुई वहां पे पॉज, डोंट रिएक्ट। नाउ आप सोचेंगे रिएक्ट नहीं करना है तो क्या करना है। रिएक्ट नहीं करना है मतलब नॉट गिविंग अटेंशन, नॉट अप्रिशिएटिंग। उस समय आपको उस चीज पे अटेंशन नहीं देना है। चाइल्ड इज एक्सपेक्टिंग कि मुझसे ये वाज टूटा है, मम्मा डांटेगी, या आज मैंने स्कूल से आकर कोई बैड वर्ड बोला है, मम्मा डांटेगी। ही इज वेटिंग फॉर योर रिएक्शन। नाउ डोंट गिव अटेंशन, डोंट गिव रिएक्शन। आप कुछ रिएक्ट मत कीजिए, वाज टूट गया, आप जाइए उसको उठा के, कांच का है, बच्चे से आप नहीं उठवाना चाहते क्योंकि उसको चोट लग सकती है, उसको क्लीन करना शुरू कर दीजिए विदाउट सेइंग अ वर्ड, राइट। वो आया स्कूल से, वो अपनी बातें बता रहा है, बातें करते करते उसने कोई बैड वर्ड या बैड लैंग्वेज या ऐसा कुछ बोला जो जनरली वी डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा ऐसा बोल भी सकता है, राइट। और आपको तुरंत से गुस्सा आएगा, तुरंत। जनरली व्हाट वी डू, ये क्या बोल रहा है, कहाँ से सीखा है ऐसे शब्द, किन दोस्तों के साथ रहता है, कैसे दोस्त बना रखे हैं, हम तो कभी घर में ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, ये कहाँ से सीख रहा है। डोंट रिएक्ट। ही इज वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, ही इज वेटिंग फॉर योर रिएक्शन। उसे पता है मम्मा डांटने वाली, लेकिन हमें नहीं डांटना है। अगर गलती पे हम डांटते रहेंगे, धीरे धीरे ओवर द टाइम, नंबर वन उनका ब्रेन कंडीशन होगा, उन्हें हमारी डांट का असर पड़ना बंद हो जाएगा। नंबर टू, जैसे जैसे वो बड़े होंगे, दे विल लर्न टू कीप सीक्रेट्स। अभी ऐसा बताऊंगा तो मम्मा डांटेगी, इसलिए नहीं बताना है, इसलिए रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, राइट। अब रिएक्ट नहीं करना है, अटेंशन नहीं देनी है, वो बैड वर्ड बोल रहा है, जस्ट उसकी तरफ देखिए, इधर उधर देखिए, अपना काम कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, नाउ ही इज कंफ्यूज्ड
कि क्या हो गया, आज मम्मा ने डांटा नहीं. देन telling them your feeling, why you have not felt like appreciating. बाद में थोड़ा शांत होने के बाद उन्हें अपनी फीलिंग बताइए, आपने क्या फील किया उसे एक्सप्रेस कीजिए. टेल देम why you did not feel like appreciating them. जैसे उन्होंने कोई बैड वर्ड बोल दिया, बाद में अगर आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आके आपसे पूछेंगे व्हाट हैपेंड मम्मा, सॉरी मम्मा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. वो ना मम्मा क्लास में आज ना राहुल ऐसे बोल रहा था इसलिए मेरे को भी वो वर्ड आज याद आ रहा था बार बार. वो खुद आके ऐसा बोलेंगे. देन प्यार से उनको ये बताइए, प्यार लेकिन फर्म टोन. ऐसा नहीं कि प्यार मतलब अरे मेरा बच्चा मेरा बेटा इधर आ मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं. प्यार मतलब नॉर्मल, चिल्ला के नहीं. प्यार मतलब न्यूट्रल. बट टेल देम इन अ फर्म टोन कि व्हाट यू फेल्ट दैट टाइम. बेटा वो वास तुमने तोड़ दिया, वो मुझे तुम्हारे मामू ने गिफ्ट किया था एंड इट वॉज वेरी प्रीशियस फॉर मी. तो जब ये टूटा आई डिड नॉट फील गुड. क्योंकि यू नो ना, ड्राइंग रूम इज नॉट अ प्लेस टू प्ले विथ बैट एंड बॉल. वी कैन प्ले आउटसाइड इन द कॉरिडोर, राइट. अगर कोई बैड वर्ड बोला है टेल देम इन अ फर्म टोन. बेटा हमारे घर पे तो हम लोग ऐसी लैंग्वेज कभी यूज नहीं करते हैं ना, पापा मम्मा कोई भी. और दादू दादी नानू नानी मामू चाची कोई भी नहीं बोलता है. देन आई डोंट फील गुड व्हेन यू स्पीक इन दिस लैंग्वेज. और इस तरह के वर्ड्स अगर आप बोलते हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता है. तो वो खुद आपको बताएगा मम्मा वो क्लास में आज रवि ने ऐसा बोला था, आज राहुल ने ऐसा बोला था. तो यू विल नो द सोर्स कि कहाँ से वो सीख रहा है. इफ यू आर नॉट रिएक्टिंग और शाउटिंग तो ही विल फील कुछ तो है, मम्मा ने नहीं डांटा इसका मतलब कुछ सीरियस है. तो वो सोचने पे मजबूर होगा. वो आपके पास आके आपसे पूछेगा, वो आपके पास आके एक्सप्रेस करेगा कि सॉरी मम्मा आई वॉज नॉट सपोज टू डू इट बट आई हैव डन इट, राइट. तो पहली चीज इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए, उनकी गलती को या गलत शब्दों को अटेंशन मत दीजिए. देन आफ्टर अ ब्रेक टेल देम अबाउट योर फीलिंग, व्हाट यू फेल्ट एट दैट टाइम. क्यों आपने अप्रिशिएट नहीं किया, क्यों आपने रिएक्ट नहीं किया. वो तो अपने स्कूल की स्टोरी सुना रहा था बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया मैंने उसकी हेल्प की. उस बीच में उसने ऐसा शब्द बोल दिया तो उसको ये लगेगा कि बाकी चीजों के लिए मम्मा ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, मैंने तो राहुल की हेल्प की थी, मम्मा ने मुझे वेरी गुड भी नहीं बोला. देन टेल देम कि व्हाई यू हैव नॉट फेल्ट लाइक अप्रिशिएटिंग. आपने राहुल की हेल्प की आई नो, बट आपने ऐसा वर्ड बोला कि रवि इज दैट बॉय, तो आई डोंट फील गुड, तो आई डोंट फील लाइक अप्रिशिएटिंग यू, राइट. तो वो क्यूरियस होंगे जानने के लिए, सोचेंगे कि क्या हो गया. नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, रीडायरेक्शन रिस्पॉन्स. ये जो इग्नोर वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं उसी के लिए हमें अपने रेस्पॉन्सेस को रीडायरेक्ट करना है. ये अभी आप लोग अगर प्रॉपरली इंटरेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग और इस स्लाइड को अच्छे से समझेंगे. अभी जैसे हमने बात की रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स नहीं देना है. उसके बाद थोड़ा पॉज, उसके बाद उन्हें अपनी फीलिंग बतानी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा. क्यों अच्छा नहीं लगा ये शब्द या ये काम. नाउ यू हैव टू रीडायरेक्ट योर रेस्पॉन्सेस. करना क्या है, जो नहीं करना है वो हमने बात कर ली, अब करना क्या है पे हम बात कर रहे हैं. जनरली हम बात करते हैं कि फिर हम क्या करें, बच्चा नहीं मान रहा नहीं सुन रहा हम क्या करें. चिल्लाना बंद करोगे वो पॉज आ जाएगा. पॉज लेके फर्म टोन में उन्हें बताओगे, रिएक्ट नहीं करोगे तो वो खुद क्यूरियस होके पूछने आएगा. अच्छा गाइस ये थोड़ा सा ना आज मेरे जूम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. अभी 10 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी अपने आप, तो आप सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके. तो यू हैव टू ओके मैम। रीडायरेक्ट योर रेस्पॉन्सेस. आपको क्या करना है, आपको अपने रेस्पॉन्स का तरीका बदलना है. कैसे. नंबर 1, describe the problem clearly and without blame.
ध्यान से समझना। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम क्लियरली एंड विदाउट ब्लेम। प्रॉब्लम क्या है? वास टूटा, बच्चे ने क्रिकेट खेला, इस इंसिडेंट में प्रॉब्लम क्या हुई आपको? बच्चे का हॉल में क्रिकेट खेलना, वो तो हम ब्लेम दे रहे हैं, क्योंकि तुमने हॉल में क्रिकेट खेला इसलिए टूटा, तो हमें ब्लेम नहीं देना है, प्रॉब्लम बतानी है। प्रॉब्लम क्या थी? वास टूट गया, बहुत एक्सपेंसिव था, या वास मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, मेरे लिए प्रीशियस था, मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे, राइट? प्रॉब्लम डिस्क्राइब करो अच्छे से, प्यार से, फर्म टोन में। बेटा जो वास टूटा वो मुझे मामू ने गिफ्ट दिया था एंड इट वाज प्रीशियस फॉर मी, तो आई एम फीलिंग हर्ट, ये प्रॉब्लम है। ये बच्चे को समझ में आना चाहिए। अभी हम जनरली क्या, इतना महंगा था तूने तोड़ दिया, महंगा होना सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका उससे इमोशंस जुड़े होना। वही महंगा वास आपसे भी टूट सकता था, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि वो इमोशंस से जुड़ा हुआ था। नाउ उस प्रॉब्लम का कारण ये है कि बच्चा हॉल में खेल रहा था, तो ब्लेम मत दीजिए। पहले गलती उसकी है पर उसको ब्लेम मत दीजिए, रिपीट मत कीजिए, सिर्फ पहले प्रॉब्लम बताइए कि वो वास इसलिए मेरे लिए प्रीशियस था, तो इसलिए उसका टूटना मुझे बुरा लगा। नाउ द चाइल्ड विल फील द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। आपने बैड वर्ड सुना, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि उसने बैड वर्ड बोला, वो तो आगे जाके कहाँ क्या कैसे बोलेगा, हर जगह आप वॉच नहीं रख पाएंगे। प्रॉब्लम है कि उसने सीखा कहाँ से। अब हम क्या करते हैं, कहाँ से सीखा, कैसे दोस्तों के साथ रहता है, घर में तो कोई नहीं बोलता, क्या कैसे वीडियोस देखता रहता है। नाउ हम ब्लेम 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 कर रहे हैं। ब्लेम नहीं देना है, प्रॉब्लम बतानी है। बेटा हमारे घर में कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलता है, वी डोंट यूज सच काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड दिस इज नॉट अ गुड लैंग्वेज, राइट? अगर हम कहीं अच्छी जगह जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के बीच में होते हैं, क्या हम वहां ऐसे शब्द बोल सकते हैं? नहीं। तो ये शब्द आपने जो बोला, वो शब्द सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा, वो प्रॉब्लम बताइए। ब्लेम मत दीजिए कि दोस्तों से सीख के आया है, कैसे दोस्त हैं तेरे, वो मत कीजिए, प्रॉब्लम बताइए। सेकेंड थिंग, टेक द ब्लेम इफ अप्रोप्रिएट। अगर जो हुआ है उसमें आपकी कोई गलती है, या आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है, या आपकी कोई लापरवाही है, तो टेक द ब्लेम। आप अपनी गलती मानिए अगर अप्रोप्रिएट है तो। जैसे वास टूटा, वो डेकोरेटिव पीस था, ड्राइंग रूम में रहता है, इट्स ओके। अगर ये कांच का ग्लास यहाँ पड़ा है और ये टूटा, तो आई कैन टेक द ब्लेम। ओ सॉरी बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये कांच का ग्लास मैंने यहाँ ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पर छोड़ दिया, राइट? आपने भी तो थोड़ी सी लापरवाही की, तो टेक द ब्लेम जहां अप्रोप्रिएट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चे को गुड फील कराने के लिए ब्लेम अपने ऊपर लेना है, जहां अप्रोप्रिएट है उसको भी समझाइए कि बेटा ये ग्लास टूटा तो ये सेट था, कोई भी आता है तो हम सेट पूरा रखते हैं, अच्छा लगता है, अब वो सेट खराब हो गया, तो उसकी आपने प्रॉब्लम बता दी कि सेट खराब हो गया एक पीस टूट जाने से, और आपकी भी थोड़ी सी लापरवाही थी, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे भी ध्यान नहीं रहा, आज मैंने डाइनिंग टेबल पे ही कांच का ग्लास छोड़ दिया, राइट? उसके बाद शो द नेगेटिव इम्पैक्ट। अब जो हुआ है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट इवेंट और दैट एक्शन, वो उस बच्चे को बता दीजिए। जब भी बच्चे से कोई गलत काम होता है, अगर हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको बता देंगे, इम्पैक्ट बता देंगे, तो बच्चा उस चीज का लॉजिक समझने की कोशिश करेगा, राइट? अब आप नेगेटिव इम्पैक्ट बता देंगे, वास टूट गया तो अब इसके जो फ्लावर हमने इसमें डेकोरेट करके रखे थे वो वेस्ट हो गए। अब अगर मामू हमारे घर आएंगे और देखेंगे वो वास टूट गया है तो उन्हें बुरा लगेगा, मम्मा को बुरा लग रहा है। कांच का ग्लास टूट गया तो अब कोई गेस्ट आए और हम पूरा सेट नहीं रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, चार ग्लास एक जैसे और दो अलग से, तो वो इट डजेंट लुक गुड। बैड वर्ड बोला तो बेटा आज आपने पहली बार बोला है, अगर इसी तरह के वर्ड्स आप और सीखोगे, रिपीटेडली बोलोगे, तो इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ योर हैबिट। मान लो कि हम कहीं जाते हैं फैमिली में और वहां पे आपने अपने कजिन्स के सामने इस तरह के शब्द बोले, तो
आपकी पर्सनैलिटी या आपकी इमेज उनके दिमाग में स्पॉइल हो सकती है। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपकी लैंग्वेज और बिहेवियर तो बहुत अच्छा है, दे ऑलवेज अप्रिशिएट यू। चाची तो हमेशा आपके कजिन को बोलती है कि देखो ये तो बहुत डिसिप्लिन्ड है, राइट। और जब आपके मुंह से चाची या मामी ऐसा वर्ड सुनेगी तो व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू, कि अरे ये तो इतना डिसिप्लिन चाइल्ड था, अब इसकी लैंग्वेज ऐसी हो गई है। तो जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज वास टूटा है, अगर कंटिन्यू आप ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेलोगे या बैट बॉल से खेलोगे, कल को टीवी भी टूट सकता है, सेंटर टेबल भी हमारी कांच की है, तो कोई भी चीज ऐसी यहाँ पर जो डेलिकेट सी है वो टूट सकती है, राइट। तो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को बता दीजिए। देन make sure the expectations or the action plan is well understood। ये स्टेप बाय स्टेप है चारों चीजें, और चारों कनेक्टेड है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सब हमने बता दिया। हमें कैसा फील हुआ वो भी हमने बता दिया। अब मेक श्योर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या बच्चे का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, वो आप क्लियरली बताएं और बच्चा वेल अंडरस्टैंड करे। अब जो वास टूटा या कांच का ग्लास टूटा, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से? आप जो बच्चे को समझा रहे हैं, ये वास टूट गया या ये कांच का ग्लास टूट गया या आपने बैड वर्ड बोला, तो अब ये जो मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हैं बच्चा क्या करे? आपकी एक्सपेक्टेशन होगी नेक्स्ट टाइम बच्चा हॉल में बैट बॉल, क्रिकेट ऐसी चीजें ना खेले, राइट। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कोई आउटडोर गेम नहीं खेल रहा है, फिर भी बच्चा हॉल में ड्राइंग रूम में कोई भी गेम खेल रहा है, तो वो थोड़ा माइंडफुल रहे कि जो फ्रेजाइल चीजें हैं, जो डेलिकेट चीजें हैं, वो टूटे ना, राइट। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी या बच्चे का एक्शन प्लान होना चाहिए कि अगर उसे क्रिकेट, बैडमिंटन ऐसा कुछ गेम खेलना है तो वो आउटडोर गेम है तो आउटडोर जाकर खेले, कॉरिडोर में वो खेल सकता है, सोसाइटी के प्ले जोन में जाके वो खेल सकता है, गार्डन में, पार्क में जाके वो खेल सकता है, राइट। तो जब आप बात करते हैं बच्चे से, गलती बता दी, प्रॉब्लम बता दी, फीलिंग्स बता दी, अगर हम कहीं इन्वॉल्व हैं तो एक्सेप्ट कर लिया, भाई मैं भी भूल गई थी यहाँ रख के, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, अब आप एक्सपेक्टेशन बताइए, वो भी क्लियर। ये नहीं करना है तो बता दिया, क्या करना है भी बताइए। सी बेटा, whenever you feel like playing cricket और बैडमिंटन, कोई भी ऐसा गेम आप खेलना चाहते हो, तो आई वुड अप्रिशिएट आप कॉरिडोर में जाके खेलो, या नीचे जो प्ले एरिया है या पार्क है सोसाइटी का, वहां पे जाके यू कैन प्ले क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स, राइट। और फिर जहां आप इन्वॉल्व हैं वो आप अपने लिए अपनी एक्सपेक्टेशन भी बताइए। ये मीटिंग हमारी अभी एक बार मीटिंग हमारी पॉज हो जाएगी, प्लीज रीजॉइन विद द सेम लिंक, ओके। तो आप जहां इन्वॉल्व हैं वो भी बताइए कि आपको हॉल में नहीं खेलना है, आप कॉरिडोर में खेल सकते हैं। एंड आई विल ऑल्सो टेक केयर, अगली बार से कोई कांच का ग्लास, कांच का वाटर जग या कोई भी ऐसी डेलिकेट चीज मैं भी ध्यान रखूंगी कि मैं डाइनिंग टेबल पर ना भूलूं, मैं उसको ले जाकर किचन में अप्रोप्रिएट प्लेस पर रख दूंगी। तो वी बोथ शुड बी माइंडफुल, वी बोथ शुड बी केयरफुल। ये चीज इस तरह से हमें बच्चे को समझानी, राइट। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, हमारा जो एक्शन प्लान बच्चे से एक्सपेक्टेड है, वो बच्चे को ये करना चाहिए, वो भी बच्चे को